Hello, everyone. Welcome to Cave Tales, a spiritual podcast series. Today is episode number 6, part 2. So, कल फ्राइडे का एपिसोड जिसने नहीं देखा है वो डेफिनेटली जाके जरूर देखें बिकॉज दिस एपिसोड इज एन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दैट एपिसोड. सो कल थे हमारे साथ मिस महक फ्रॉम फरीदाबाद एंड आज उनके साथ हम उसी जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं एंड बहुत सारी डिफरेंट मोडालिटीज के बारे में जानने वाले हैं. So, Miss Mehak, welcome to this podcast. Hi, Kajal, and hello, all the viewers. So, my name is Mehak. Thank you so much, Kajal, for inviting me over. Initially, I was a bit skeptical कि कैसे होगा, सब कुछ कैसे होगा, but thank you so much for making me feel so comfortable with this podcast series. And as I mentioned earlier, that this is the first time that I am coming on such kind of platform and opening up with my views and all. So all the credit goes to you. Hmm. Trust me, I have never felt so comfortable talking to people or answering so many difficult questions like this. All Hmm. thanks to you and the way you are conducting all the podcasts. God bless you for all such sessions and the sessions for which you'll be coming ahead with. I am grateful to you for accepting this invitation, Mehak ma'am. And please introduce yourself, give brief about your work because people they'll connect with you through that mediums. Okay, so my name is Mehak, as I have already mentioned earlier, and I am a teacher by profession, but my passion project is all about tarot and rune casting. And I also involve myself in crystal consultations depending upon the scenarios or the situations that you might be going through. I am Yeah. available through the Instagram handle that's on Wute Tarot, and Huh. which Kajal will be mentioning Yeah. in a short time. Yeah. And I am also available through WhatsApp, DMs, or the Telegram. The Telegram link is already there in my Yes. Instagram page. So you all can, if anybody needs any sort of consultation regarding tarot or runes or even the rune classes, so I'm open to all of you. Eagerly Yeah. waiting for you all to join me. Thank you, Mehak ma'am. So, guys, I have put her Instagram link, and Telegram link in the description section. So you can go there and just click on it and follow her on Instagram and Telegram. So, Mehak ma'am, thank you for accepting this podcast series with us. And, we are so grateful and we have learned so many things about runes from you. So, आज हमारा first जो question रहेगा, लास्ट एपिसोड में आपने काफी विजन बोर्ड के बारे में बात की है, रूल्स के साथ विजन बोर्ड के बारे में बात की है. सो वी जस्ट वांट टू नो अबाउट व्हाट इज विजन बोर्ड. पीपल दे डोंट नो अबाउट दिस थिंग. बहुत सारी चीजें मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पे आती हैं. विजन बोर्ड, मूड बोर्ड. So what it is and how people they can get benefit from this modality. When we talk about vision board, now as the name suggests, vision and board, there are two words in it. Vision means आप क्या देख रहे हो या आप क्या देखना चाहते हो. And something that is your goal, you are putting it up as a on a paper, or it can be in the form of digital format also. So it depends upon person to person. उनके साथ क्या चीज resonate ज्यादा करती है. Now Okay. vision board जो एक it's basically a manifestation tool to Okay. help you manifest your desires Yeah. in the format, and it will help you to enforce your vision and support the visualization practice as well. ओके, Okay. तो विजन बोर्ड के अपने खुद भी कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं. अगर हम बात करें निकोला टेस्ला की, नाउ एवरीबॉडी नोज, द एंटायर वर्ल्ड नोज हु वाज निकोला निकोला टेस्ला. नाउ Hmm. निकोला टेस्ला की एक बहुत ही अच्छी चीज थी कि वो सब कुछ सोच करके, सपोज उन्होंने एक कार बनानी है, तो उन्होंने Hmm. उस कार के बारे में, उस कार का डिजाइन विजुलाइज किया, उस कार को बनाने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे उसको विजुलाइज किया, Hmm. उसको असेंबल करा विजुलाइजेशन के साथ, उसको Hmm. टेस्ट कर दिया विजुलाइजेशन के साथ, और Okay. उन्होंने उस चीज का, अगर वो चीज नहीं चल रही है तो उसको क्यों नहीं चल रही है, वो कैसे चलेगी, एवरीथिंग दैट पर्सन हैज विजुअलाइज्ड. एंड Okay. फाइनली ही केम अप विद द आइडिया एंड इनोवेटिव आइडिया. अब इस चीज को उसने ऑलरेडी सब कुछ विजुअलाइज कर लिया. अब जब उसने चीज बनाया तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसको एक काम को करने की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई.
सो Okay. सेम फॉर्मेट में अगर हम बात करें विजन विजन बोर्ड का, हम एक चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं। एक चीज है, सपोज मुझे आज BMW गाड़ी चाहिए अपने घर के बाहर। Right. एवरीबडी वांट्स एनी लग्जरी कार स्टैंडिंग इन फ्रंट द मोमेंट यू गो आउट, आपको Yeah. चाहिए। अब Yeah. विद द हार्ड वर्क, विजन बोर्ड का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ एक पिक्चर लगा दी, आप उसको रोज देख रहे हो और आप प्रे कर रहे हो कि गाड़ी खड़ी हो जाए, नहीं। हाँ, विजन बोर्ड क्या कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर कर रहा है। okay. एनी सॉर्ट ऑफ जर्नलिंग टेक्निक हो गया आपका, या आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन टूल आप उठा लो, Hmm. विद द हार्ड वर्क, विद द प्रॉपर एफर्ट दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट डिजायर, आपको वो Yeah. चीज तभी मिलेगी। सो विजन बोर्ड आपका चीजों को देखने का नजरिया चेंज कर रहा है, Hmm. आपका सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर कर रहा है, एंड दैट्स Hmm. वाई आपको वो एक एक्शन ड्रिवन पर्सनैलिटी बना रहा है। ओके, Right. तो विजन बोर्ड इज बेसिकली हेल्पिंग यू टू गेट क्लियर ऑन योर गोल्स। आपके गोल्स बहुत क्लियर हो गए हैं। जब Okay. आपके गोल्स क्लियर हो रहे हैं, आपके सामने, आपको पता है कि आपको ये एक चीज, पर्टिकुलर चीज चाहिए, Hmm. आपको एक मोटिवेशन हो रहा है, यू आर गेटिंग मोटिवेटेड टू अचीव दैट गोल। Yeah. ऑलराइट, जब आपको मोटिवेशन मिल गया, आपके पास एक इंटेंशन आ गया कि आपको तो वही ये काम चीज करनी ही करनी है, राइट, Hmm. आपका धीरे धीरे माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा। सपोज मैं अभी तक प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी हर चीज के साथ, कि मेरे को नहीं करना, हो जाएगा, ये है वो है, हाँ ठीक है आज नहीं करते कल कर लेंगे। तो उसमें मेरा जो गोल है वो सारा हे वायर जा रहा है, मेरी इंटेंशन ही नहीं है उस चीज को करने के लिए। मेरा माइंडसेट एक ब्लॉकेज माइंडसेट है, Hmm. फिक्स्ड माइंडसेट है मेरा। तो विजन बोर्ड आपके फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेकर के जा रहा है आपको, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट दैट मैटर्स। हम बोलते Hmm. हैं ना कि इट इज ऑल इन योर हेड। Hmm. मेरे को तो ये चीज करने आती ही नहीं है, हमने अपने आप ही ब्लॉकेज लगा ली है, Right. हमें करना ही नहीं है। मेरे को Right. मैथ्स आती ही नहीं है, हम ये चीज बोलते हैं, मैं भी बहुत बोलती हूँ। हमने कभी ट्राई नहीं करा उस चीज को फुलफिल करने के लिए, तो Right. वो ब्लॉकेज है, आपका शिफ्ट ऑफ माइंडसेट नहीं है। तो विजन बोर्ड में क्या होगा, जो चीज आप हर रोज देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर में देख रहे हो, आपका माइंड उस डायरेक्शन में आपको लेकर के जाता है। Hmm. बिकॉज आप सोच अपने कॉन्शियस माइंड से रहे हो, लेकिन चीजें सबकॉन्शियस माइंड आपको करवा रहा है। Hmm. द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड अगर हम देखें तो उसमें वो बहुत एक ब्यूटीफुली उसने चीज समझाई है, कि हाँ. चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में लेकर के आना ही सबसे बड़ा टास्क है, जो हम Right. नहीं सीख पाते हैं। हम क्या Absolutely. करते हैं, हम कॉन्शियस माइंड को इतना ओवर एम्पावर कर देते हैं कि बेचारा सबकॉन्शियस माइंड तो आ ही नहीं पाता पिक्चर में। Right. एंड जितनी भी हमारी मैनिफेस्टेशंस हैं, जितना भी हमारा डिजायर्स है, वो सारा का सारा आपका सबकॉन्शियस माइंड का गेम है। सो Hmm. बेसिकली जो आपका विजन बोर्ड है, इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस। प्रोडक्टिविटी में जब आपका हाँ. इंक्रीज होगा, जितनी प्रोडक्टिव आप होगे उतना आपका चांसेस ऑफ सक्सेस होएगा। सो Yeah. इस चीज के साथ यू कैन वर्क वेरी वेल विद। Wow. पीपल विल से कि आप तो बातें कर रहे हो, क्या हाँ. आपने कभी करा? यस, आई हैव इम्प्लीमेंटेड थिंग्स ऑन मी, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर एंड डिस्कसिंग सच Wow. थिंग्स। So what is that thing, or maybe you want to share that experience? We would या like. आई वॉज वर्किंग विद अ वेरी वेरी बेसिक सा विजन बोर्ड। ठीक है, Okay. सो आई डू बिलीव इन पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन अ लॉट। लाइक जब से चीजें मेरे साथ हुई, जब से मैंने अपना माइंडसेट शिफ्ट करा, चेंज करा, सो हाँ. आई हैव पोजीशनड माई सेल्फ इन, आई हैव स्ट्रक्चर्ड माई सेल्फ इन अ वे कि मैं चीजों को कर पाती हूँ मैनिफेस्ट विद गॉड्स ग्रेस। ठीक है, जो चीज नहीं हो रही है, मुझे आई टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग कि वो चीज मेरे को, मेरे अच्छे के लिए है ही नहीं। So हाँ. I worked with a vision board and I manifested a very good husband, a very good family, a very Wow. blessed family. I Wow. am blessed to be in this family. So just like that. Wow. Also, I will be coming up with a vision board masterclass very soon. It's in the pipeline. So things are on its like spree चल रहा है, back of the mind कैसे करना है, कैसे सब करना है. So yes, I'll be definitely coming up with such thing because जब तक जो चीज मेरे पे implement होकर के मुझे नहीं मिली, I will not be able to deliver the same thing. Something Yeah. which I have tried and I have worked upon myself, only then I'm accountable to deliver it further. Right, absolutely. So, vision board, I felt that, काफी help भी करता है. And I think if you have a vision, then you have ability to create that thing into your reality. Means उसको अपनी A reality, dream life. हाँ, is मतलब Hmm. पॉसिबल है अगर आपकी विजन है. कईयों का विजन होएगा ही नहीं. अगर आपको विजन ही नहीं होएगा तो आप क्या रियलिटी में क्रिएट कर क्या पाओगे? करोगे?
राइट। यस। हेलीकॉप्टर के बारे में या प्लेन के बारे में कोई सोचता ही ना, कोई सोचता ही ना कि उड़ के भी जा सकते हैं, तो आज प्लेन भी नहीं होते। तो दिस इज द ट्रू। पावर ऑफ विजन बोर्ड। सो विजन बोर्ड जो है वो हम्म। डिजिटली भी क्रिएट कर सकते हैं हम, या ऑन पेपर, ऑन ऑन विद द पेन और स्केचेस और विद पिक्चर्स, लाइक जैसे हम्म। स्क्रैप बनाते हैं वैसे भी कर सकते हैं। हम्म। कोई एनी डिफरेंट वे? देखो, विजन बोर्ड बनाने के मेजरली दो तरीके हैं। ओके। या तो आप डिजिटली क्रिएट करो, डिजिटल के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। पिंटरेस्ट से आपने पिक्चर्स ली, गूगल से आपने पिक्चर्स ली, आपने कैनवा पे बना दिया, आपने पिक्टो चार्ट पे बना दिया। सो इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन पर्सन टू पर्सन। कोई कोई या लोग आप वर्ड डॉक्यूमेंट में ही बना सकते हो एंड देन यू कैन सेव। पीडीएफ पे बना दिया आपने, या वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। सो इट्स टोटली पर्सन चॉइस। सेकेंड इज यू कैन इवन डू इट ऑन अ टेक अ बोर्ड। बोर्ड पे आपने पिक्चर्स स्टेपल कर दी या पिन से लगा दिया, सब कुछ। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन कि उसने कैसे बनाना है। हम्म। व्हाट आई फील इज कि आजकल इतना टेक्नोलॉजिकल टेक सेवी हो चुके हैं सब कुछ, तो एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट दी फोन, द डिजिटल वर्ल्ड एंड एवरीथिंग। सो पीपल फील मोर कनेक्टेड टू फोन्स बिकॉज फोन है तो जान है। सबके लिए तो आजकल ये सिनेरियो है। राइट, So एब्सोल्युटली। people, yeah. So I have personally worked with the digital vision board. I worked it on Canva, तो मैंने उस पे सारा क्रिएट किया था. But it's totally person's choice. सेम Also, I would like to quote, हाँ, I would like to mention one very important thing over here. विजन बोर्ड के साथ मुझे क्या लगता है, इट शुड नॉट कम इन टू द आईज ऑफ अदर पर्सन। लाइक अगर काजल ने अपना विजन बोर्ड बनाया है या मैंने ओके। अपना विजन बोर्ड बनाया है, तो इट शुड नॉट बी आपके अलावा कोई और ना देखे। अब इसके पीछे एक रीजन ये है कि सबकी एक नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। ओके। अगर मैं अपनी बात भी करूं तो मेरी भी एक पॉजिटिव, एवरीबडी हैज अ पॉजिटिव साइड एंड अ नेगेटिव साइड। सो या। पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड में, अब मैं आपको सपोज मैंने अपना वो बीएमडब्ल्यू की पिक्चर अपनी उस पे लगाई है विजन बोर्ड पे। आप हम्म। बोलोगे अच्छा ये तो बीएमडब्ल्यू मैनिफेस्ट कर रही है, क्यों कर रही है, इसका काम ऐसा नहीं है वैसे। सो पीपल पुट might देयर पॉइंट ऑफ get in व्यूज। put their negative energies in the vision board. So हाँ। vision board is something which is very, should be very very close to somebody's heart. आप हाँ। मत दिखाओ। अगर सी मेरे को ये फील होता है, अगर आपको ये मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, मत करो। आपने सबको करेक्ट। दिखाना है, आप दिखाओ, इट्स टोटली योर चॉइस। बट मुझे ऐसा लगता है कि इट शुड बी वेरी वेरी पर्सनल, वेरी यस। वेरी सीक्रेटिव। क्योंकि यू आर मैनिफेस्टिंग, और जितनी पावर्स आप डाल सकते हो ना अपनी एक चीज डिजायर करके लेने में, वो कोई और राइट। नहीं कर सकता आपके लिए। नोबडी हम्म। एल्स कैन डू। जितने पावरफुल आप कर सकते हो एक चीज को पाने के लिए, वो दूसरा बंदा कैसे कर लेगा? नेचुरल राइट। सी बात है। राइट, एब्सोल्युटली। सो आई हैव मेड अ विजन बोर्ड, बट मैंने उसको एज अ वॉलपेपर अपने फोन पे लगाया, सो यू अभी कैन उसको मैं, यूज, बट यू कैन यूज एज अ somebody sees वॉलपेपर। that thing, कोई देखे और उस वॉलपेपर को, तो वो इशू हो जाएगा। सो आई फेल्ट दैट ये, हाँ, देन यू नीड टू बी सीक्रेटिव विद द फोन। या वो फिर देन। आपको टैक्टिक्स अपनाने पड़ेंगे कि आपने फोन कैसे करना है जैसे भी। बिकॉज आई पर्सनली कीप इट सेव्ड इन माई गैलरी। ओके। और रात को उसको सोने से पहले आपने 10 मिनट अपने आप को अलाइन करा, आपने विजन बोर्ड को पूरा देखा, एंड हाँ। देन यू स्टार्ट टू स्लीप। सोने के बाद, बिकॉज स्लीपिंग प्रोसेस विल इंक्रीज। आपने उस टाइम के लिए थोड़े टाइम के लेट गो कर दिया, लेट इट गो ऑन द यूनिवर्स, लेट द यूनिवर्स वर्क फॉर योर विजन नाउ। यू राइट। हैव टू जस्ट पुट इन दैट एफर्ट, एफर्ट ऑफ टेकिंग दैट गोल। डेस्परेट नहीं होना हमने। हम्म। You don't have to get desperate. When you talk about law of manifestation, desperate energies are very negative energies. यस। So वो नहीं दिखाना आपने. Okay, so I think this is the most important thing I have learned from you about vision board. So I think viewers को भी help मिलेगी, and ये जो tip है specially आप सबके काम आने वाली है, तो just follow कीजिए इसको. And ma'am, how can journaling bring a shift in a person's life and his mindset? Okay. So when we talk about journaling, I Hmm. relate journaling to a menu card. Now, Okay. why a menu card? You go to a restaurant Yeah. and the waiter comes to you. Yeah. He will not just show you something, मैडम ये खाने को है। वो आपके सामने एक मेन्यू कार्ड रख देगा, Right. उसमें चीजें मेंशन्ड है। आप उसको देखते हो और आप उसमें से चीजें ऑर्डर कर देते हो। Right. ठीक है। जर्नलिंग में क्या हो रहा है, जो चीज आपके पास है, आपने जर्नलिंग का सबसे पहला रूल कहता है प्रेजेंट टेंस में लिखना है जो भी लिखना है। हाँ. आई एम अ मनी मैग्नेट, Yeah. माई इनकम इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। सो दीज आर ऑल इन प्रेजेंट टेंस। ऐसा Hmm. लिखना है जो चीजें आपके पास हैं ऑलरेडी। Right. ठीक है।
अब आपने वो चीजें एज अ जर्नल में लिखा और आपने यूनिवर्स को दे दिया, तो आपका मेन्यू तो रेडी है। अब यूनिवर्स का काम है कि उसने कैसे चीजें आपके तक सर्व करना डिलीवर है। करनी है। बट Yeah. यू हैव टू बी एन एक्शन ड्रिवन पर्सन। ये नहीं कि छोड़ छाड़ के आपने कर दिया। हम्म। हाँ, हम बोलते हैं लेट गो करो। अब लेट गो और एक्शन कर टेकिंग में डिफरेंस है। या। लेट गो करोगे, आप उस चीज को पकड़ के नहीं रख सकते कि यार मेरे को तो इतना 10 लाख रुपए हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए ही चाहिए। जब तक हाँ। आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो, आप एक्शन ड्रिवन ही नहीं हो, तो वो दस राइट। लाख रुपए कहाँ से आएंगे? सो एब्सोल्युटली। जर्नलिंग टेक्निक विल अगेन शिफ्ट योर माइंड सेट। अब वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग लिखना है, हम्म। आपने रात को सोते टाइम लिखना है। सो हम्म। मैंने, क्योंकि जब मैंने ट्राई करा, मैंने मॉर्निंग में भी करा है, मैंने सोते टाइम भी किया है, मैंने बीच में भी किया है। क्योंकि हम्म। मुझे क्या लगता है, जब मेरा माइंड क्लियर है तभी मैं तब जर्नलिंग कर करूँ। सकती हूँ, हाँ। तब मैं करूँ। बट इट इज हार्डली अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स। 10 मिनट के लिए आप पूरे दिन में यू कैन गिव 10 मिनट्स टू योर सेल्फ, बिकॉज ओके। आपको अपनी लाइफ स्टेबल करनी है। हम्म। तो दैट राइट। इज इन योर हैंड्स। या। सो कि जो न्यू पर्सन है जिन्होंने कभी जर्नलिंग नहीं की है, तो उनके लिए कोई टिप्स हाउ दे कैन स्टार्ट दिस जर्नलिंग थिंग, इनिशियल ओके। स्टेजेस पे जो है। सी, जर्नलिंग प्रॉम्प्ट जो होते हैं वो इंटरनेट पे भी इजीली अवेलेबल है, और यू कैन इवन कॉन्टैक्ट मी, और इवन काजल, यू कैन प्रोवाइड देम द जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स, या। बिकॉज सिंस वी आर ऑलरेडी डूइंग फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम बैक। तो एब्सोल्युटली। जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स आपको आपको बस अपना पहले तो विजन क्लियर करना है कि आपको किस चीज के ऊपर पर्पस भी। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। आपको राइट। अपना पर्पस क्लियर करना है। आपको शादी करनी है, आपको सोलमेट चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको न्यू जॉब चाहिए, तो राइट। इंटरनेट इज जस्ट लाइक 1 क्लिक अवे। आप वहां इंटरनेट से भी जन कर लो। वट एवर एफर्मेशन आर देयर, आप कोई भी एक एफर्मेशन ले लो। जैसे हाँ। मैंने अभी एक एफर्मेशन दी, दैट आई एम अ मनी मैग्नेट and हम्म। my income increases constantly. तो राइट। if you can speak this affirmation regularly, उठ करके, और I am a lovable person and I attract lovable relationships every now and then. So हम्म। आपने या तो कोई एक एफर्मेशन ले ली, या आपने एक कोई भी ऐसे स्टेटमेंट टाइप ले ली और आप उसको लिख रहे हो। नाउ हम्म। जर्नलिंग से क्या हो रहा है, आप एक चीज को पक्का कर रहे हो लिख हाँ। करके, and at the end do sign it, because you are the manifestor of your own dreams and you have given this right to your own self. साइन हम क्यों करते हैं चेक पे? हमारे साइन के अलावा आप पैसे नहीं निकाल सकते हमारे अकाउंट में से। राइट। तो जर्नलिंग में क्या हो रहा है, आपने जर्नलिंग में एट द एंड लिखा, सब खत्म, दैट इट्स डन। हम्म। ऑल्सो ग्रेटिट्यूड, उसको नहीं भूलना। जर्नलिंग से सबसे पहले हम करेंगे ग्रेटिट्यूड के ऊपर, क्योंकि हाँ। ग्रेटिट्यूड है, आप ग्रेटफुल हो चीजों को अपनी लाइफ में लाने के लिए, या जो हम्म। चीजें आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं आप उनको प्रेज ही नहीं कर रहे हो, तो यू आर बिकमिंग डेस्परेट। आप सिर्फ सेल्फिशनेस दिखा रहे हो। सो सबसे पहला रूल है आपका जर्नलिंग का, दैट यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू आर हैविंग। या। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी abundance इन ऑल द पॉजिटिव सेंस इन माई लाइफ। सो आपने पहले ही थैंक्स बोल दिया। जितना आप हम्म। ओपन अप होगे journaling के साथ, and then you start with your techniques, whatever technique you want to follow. फिर there are n number of techniques, so that will depend upon person कि कैसे होगा, and that's particularly with the consultation, proper consultation session. So that's it. राइट। या। आई थिंक जर्नलिंग जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है उनके लिए काफी अच्छा काम कर सकती है, उनके सबकॉन्शियस को हाँ। वो समझ सकते हैं, अपने माइंड को काम कर सकते हैं। एंड हम्म। मतलब बेसिक कईयों को ना अपना पर्पस ही नहीं पता होता लाइफ में क्या चाहिए वाकई। तो जर्नलिंग से वो चीजें क्लियर होने वाली है उनकी लाइफ में। हाँ, क्लियर हो जाती है आपकी लाइफ में। या। सो Mehak ma'am, you have told me that you have manifested a beautiful, loving, caring हस्बैंड husband, a एंड अ great फैमिली एज a वेल। great family, या। and हाँ। marriage, right? A successful marriage. So मैनिफेस्टेशन का तो बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। बट जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप क्या टिप देना चाहते हो कि मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, राइट? ओके। सो अगर हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों चीजें साइड बाय साइड काम कर रही हैं। ओके। आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हो जिसके बारे में आप सोच रहे हो। हाँ। ओके। तो अगर मैं आज ये सोच रही हूँ कि मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकती अपने काम में, हाँ। आपने बार बार अपने आप को एक आशीर्वाद दे दिया कि हाँ जी, हम तो बढ़ ही नहीं सकते हैं। और वो राइट। आशीर्वाद भी सिर्फ आपने दिया, दूसरा बंदा तो छोड़ ही दो।
बिकॉज सबसे पहले तो हमने अपने आप को ही दे दिया. सो व्हेन हम्म यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दैट ब्लॉकेज, यू हम्म ऑलरेडी मैनिफेस्टेड दैट थिंग कि ये चीज हो ही नहीं सकती अपनी लाइफ में, देन देयर इज नो पॉइंट. लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बात कर, अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आप अट्रैक्ट कर रहे हो उस चीज को. राइट आप जितना नेगेटिव बोल रहे हो आपके पास नेगेटिविटी आ रही है. आप हम्म जितना पॉजिटिव माइंडसेट या पॉजिटिवली सोच रहे हो आपके पास वो चीजें आ रही हैं. तो मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल गो हैंड इन हैंड. जो आपने सोचा, जो आपने अट्रैक्ट किया, वो आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया. राइट तो इसलिए हम बार बार क्यों बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर लाइज इन दी पॉजिटिव थिंकिंग. या साफ बोलो, क्लियर बोलो, स्पष्ट बोलो, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव सेंस में बोलो. तभी राइट चीजें सही होंगी आपके लिए. या आई मीन लाइक चूज योर वर्ड्स वाइजली. वेरी वाइज. हम हैप्पी बर्थडे क्यों बोलते हैं जब कोई पैदा होता है? तो हम बर्थडे भी तो बोल सकते हैं, बट हमने एक सिर्फ एक सिंपल हैप्पी वर्ड आगे लगा दिया, तो उससे बर्थडे की कितनी वैल्यू बढ़ गई. राइट तो हमने हैप्पीनेस आ अट्रैक्शन की गई. तरफ, हैप्पीनेस आ गई. या दैट क्योंकि वेज. ये हैप्पीनेस सिर्फ बर्थडे वाले दिन में ही होगी. अगर हम कहेंगे हाँ. अच्छा नेक्स्ट डे हम सेलिब्रेट करें, बट वो मजा नहीं आता जो हाँ. बर्थडे वाले दिन ही आता है. हाँ. हाँ, हम बोलते ना मेरा बर्थडे आ रहा है, हाँ एंड व्हेन पीपल विल स्टार्ट विशिंग यू हैप्पी बर्थडे, तो वो हैप्पीनेस सोच के ही आ जाती है कि हाँ, पीपल विल बी ट्रीटिंग यू वेरी स्पेशल. तो हम अगर yes, एक दिन के लिए वेट कर सकते हैं, व्हाई कांट वी डू फॉर द इंटायर लाइफ? व्हाई कांट राइट. वी मैनिफेस्ट फॉर द इंटायर लाइफ? हर एक अट्रैक्शन हम दिन वैसी हैप्पी चीजों हो. को करें ना, हम अट्रैक्ट भी उन्हीं चीजों को करें जिससे हमारी लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो सकती है. मतलब ये ना हो कि एक हैप्पी बर्थडे को ही आप हैप्पी कर दो और बाकी चीजों को अनहैप्पी. बाकी दिन सैड. हाँ. हाँ हर एक चीज को हर एक चीज को करो. हैप्पीनेस में कन्वर्ट करना है. सो यू कैन डू इट विद द टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो यू नो अट्रैक्शन. मैनिफेस्टेशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स लोग करते हैं and वो बोलते हैं हमने तो पूरी हर एक टेक्निक को फॉलो किया है, वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस एंड दैट, बट स्टिल जो चीजें हैं जो भी वो मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो नहीं हो पाते. तो व्हाट आर द बेसिक हम्म. मिस्टेक्स दे आर डूइंग? व्हाट्स योर टिप टू ओके. देम? See, the first thing people fail to do is paying gratitude to whatever you are already having. अगर राइट. आप ग्रेटफुल ही नहीं हो जो चीजें आपके पास है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको नई चीजें एंटर नहीं हो सकती. आज हम्म. हम बात करते हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ या मैं ऑफिस जा रही हूँ, हाँ तो इतना जैम है रास्ते में. बहुत ओहो, ज्यादा. 5 मिनट घर से नहीं निकल गया तो जैम है. अरे, हम हमेशा उस जैम पे फोकस करते हैं. व्हाई कांट वी फोकस ऑन दी जॉब जिस वजह से आप गाड़ी चला के जा पा रहे हो? राइट अगर वो जॉब हाथ में नहीं होती, तो क्या आपके पास एक गाड़ी होती या गाड़ी में पेट्रोल भरने के पैसे होते? सिंपल. राइट. सिंपल है ना? तो हम अपने आप को रिफ्रेम नहीं करते हैं, हम्म. चीजों को, अपने माइंड को हम गलत डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं. तो ओके. पहली बात है कि हम ग्रेटफुल नहीं है चीजों को सोच करके. हम्म. जॉब है, गाड़ी है, पेट्रोल भरने का खर्चा आ रहा है, तभी तो जैम में फंसे हो. राइट. या बस एब्सोल्युटली. में भी जैम में फंस गए आप, फॉर एग्जाम्पल. तो कोई एक पर्पस है आपकी लाइफ का, तभी तो आप उस बस में ट्रैवल कर रहे हो, तो घर बैठो आराम करो. एक हम्म. पर्पस है तभी तो आप घर से बाहर निकले हो. तो वाई टू क्वेश्चन द थिंग्स जो गलत है? वाई कांट वी सी द ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर? हम्म. सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल. हर रोज सुबह उठ के शुक्र करो टू द हाईएस्ट डीटी, जिसको भी आप मानते हो. एंड हम्म. ट्रस्ट मी द थिंग्स विल गोना शिफ्ट लाइक दिस. आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा दैट यू हैव नेवर एवर इमेजिन्ड. Okay, so राइट. first thing is very, very grateful. या Second important thing while journaling is everything you need to, मैनिफेस्टेशन. while manifestation, you या need to accept everything that something has already been with you. आपके साथ वो ओके. चीज है. एंड हाउ हाँ. यू आर फीलिंग. आज अगर मैं बोलूं कि मेरे को तो यूरोप ट्रिप पे जाना है विद हम्म. माय हस्बैंड, ठीक है. नाउ अब यूरोप ट्रिप पे जाकर के हाउ वुड आई फील व्हेन आई गो ऑन द टॉप ऑफ द टिट लिस्ट, एंड हाउ वुड आई फील ओवर देयर? ट्राई टू इमेजिन ऑल दोस थिंग्स, ट्राई टू विजुलाइज. लाइक अपनी, हाँ, विजुलाइज करके अपने अंदर वो चीजें लेकर के आओ. तो हम्म. दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर चीज को प्रेजेंट टेंस में करो कि वो चीज आपके पास ऑलरेडी आ है चुकी है. है जब वो राइट. आपके पास आ चुकी है, तो वो आ ले ही आओ, बस जाएगी. खत्म. वो वो आ आ ही ही जाएगी जाएगी. आपके पास. बाय बिकॉज भगवान. आपने इतनी पॉजिटिव पावर्स डाल दी है. थर्ड, राइट. डोंट बिकम डेस्परेट. किसी हाँ. चीज को पाने के लिए डेस्परेटनेस मत दिखाओ.
जितना desperate दोगे, the more you'll get desperate, the more negative energies you are gonna attract, and whatever work you have done, you are coming back to the scratch. फिर से शुरू करना पड़ेगा. राइट, तो एब्सोल्युटली। बेसिकली इन अ लेमन लाइन, लेट गो कर दो. आज आपने लोग, जनरली लिखा, छोड़ हाँ। दो, मत सोचो बार बार उस चीज के बारे में कि कैसे. यू हम्म। डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ हाउ द थिंग्स आर गोना वर्क फॉर यू. राइट। यू जस्ट नीड टू फोकस कि व्हाट आर यू डूइंग. तो व्हाट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो, रादर देन हाउ एंड व्हेन. वो हाउ और व्हेन का जो काम है वो यूनिवर्स का है, वो वो जैसे भगवान का है. सलमान खान का डायलॉग है ना, हर क्या क्यों काय को का जवाब नहीं होता। हाँ. यूनिवर्स की लैंग्वेज, किसी चीज का कोई सेम. जवाब नहीं होता, सब कुछ एक मैजिकल हाँ. एक्सपीरियंस होता है, एंड हाँ. प्रोवाइड कराता ही कराता है। सो कर मैं, जाएगा. लॉट ऑफ पीपल दे हैव जजमेंट अबाउट यू, योर वर्क, नॉट अबाउट यू, बट जो भी हीलर्स होते हैं, रीडर्स होते हैं, इस मोडालिटी में जो लोग होते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल जजमेंट, क्रिटिसिज्म, व्यू पॉइंट्स ये होते ही है। तो व्हाट्स योर एडवाइस टू द to all the healers to how they can handle this thing? सी, जितना ये क्रिटिसिज्म है और जो जजमेंट है, ये सारा आया कहाँ से है? दिस ओनली वी हैव क्रिएटेड. Yeah, We humans have only created. We ab- cannot see a person growing, so we will be criticizing that person. We seriously. cannot take up, हाँ, we cannot, because everybody has a notion कि सामने वाला बंदा क्यों ग्रो कर रहा है, सामने Hmm. वाले बंदे के पास क्यों इतना पैसा और मेरे पास नहीं है. But they will not look at the other side of the person कि how much effort and pain the person has already implemented to come up to a Absolutely. particular point. Yeah. Being into this field, being into a professional field, I have also faced a lot of judgment and criticism. बहुत criticism मैंने face करा, and we are facing, because it's a Yeah. human tendency. मैंने Absolutely. नहीं करा तो किसी और ने कर दिया, Hmm. right? तो you should only have faith on your capabilities and your caliber. You don't Yeah. need to prove, first of all, you need to prove yourself, and then you need to Absolutely. prove your superiors, the ones for whom you are working for. Yeah. Okay, so criticism and judgment should not be acting like a hindrance in Yeah. your growth. Growth. चार लोग हैं, दो ही बात है, चार लोग हैं, चार लोग बातें करने के लिए हैं, वो चार लोग भी तो हम में से ही हैं. We have Right. only created those people. So Yeah. why to get diverted? So Yes. just ignore those people, just ignore that criticism, and follow your own path. If you Absolutely. feel the things are right for you, go ahead with that step. Don't just turn Absolutely. around. एब्सोल्युटली, जब मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो कई लोग ऐसे थे जिनका रिस्पॉन्स लाइक इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग, ये तो बहुत इजी है, वी विल आल्सो स्टार्ट दिस थिंग। आई Mhm. सेड ओके, बट दे डोंट नो हाउ मच एफर्ट्स आई एम पुटिंग इनटू दिस थिंग, एक तो पहले Yes, कोलैबोरेशन, देन एडिटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, it's not easy. इट टुक मी It's लाइक 1 not at all easy. The people who say like this, the people who say like this, I'm sure they don't even know how to make a small video on Instagram. Making a reel on Instagram is a pain in the ass. It's actually a सीरियसली। pain in the ass. Editing part will take one reel that we post on Instagram is like we have put in our heart and soul, and people will not understand. So it's okay. We cannot stop our work. Yeah, I Naturally, just we told cannot them, stop our okay. work. I just told them, okay, आप भी करिए. It's a good experience. Let them understand themselves ना कि क्या efforts है हाँ. क्या नहीं. Because जब तक No, कोई but seriously, hats off to you. I would seriously say hats off to you. It's not an easy thing to do recordings, then to convince the other person, then yeah, the editing part, then the YouTube part. Oh my God, it takes a toll. Then you have to follow all the conditions what YouTube will be fulfilling for. So yeah, it's a yeah, absolutely. long process. I would really say hats off to you, Kajal. You're doing a I must say, commendable job. I must say जो आपने बोला है वो विजन एक होना चाहिए, वही मेरे पास था, एक विजन था पॉडकास्ट क्रिएट करने का। बाकी खुद भगवान ने चाहे है तो हीलर्स भी कनेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ Yes, हो रहा है टाइम। सो yes, आई एम yes, yes. एंड आप भी इस जर्नी का पार्ट हो, सो आपका उतना Mm. ही पूरा ही जितना एफर्ट मेरा है उतना ही आपका भी एफर्ट है, एंड आई नो दैट वी विल, Yeah, हम सब इसमें काफी ग्रो करने वाले हैं। सो grow मैंने करेंगे. True. Yeah. तो माय लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज दैट बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में अब आना चाहते हैं, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी एक फुल टाइम करियर बन गया है अब। Hmm. earlier it was like a part-time business, but अब लोग full-time spiritual modalities में आ रहे हैं. So
आपको क्या कहना है उन लोगों को, ताकि उनको थोड़ी मोटिवेशन मिले एंड वो डेफिनेटली जो भी कंफ्यूजन है उसको साइड में रख के ये डिसीजन ले और आए हम्म। इस फील्ड में, बिकॉज काफी ग्रोथ है इस फील्ड में। हाँ, so I totally agree with your question that there's a lot of growth in this major field of spirituality and all. हम्म। One advice that I would like to give to the future healers or the readers: हम्म। go with your heart. यस। अगर आपका दिल चाहता है ना कि आपने ये चीज करनी है, then definitely take that thing. या। I was the person who was just randomly sitting one day, और ठीक है, टैरो से मैं हुई सब कुछ, आई डिड द टैरो कार्ड रीडिंग, सब कुछ मैंने कर लिया, आई डिड द कोर्सेज एंड ऑल, बट हाँ। व्हेन आई गॉट इन्वॉल्व विद द रून्स वाला, you won't believe I had just taken the decision of learning runes in 5 minutes. आई हाँ। वॉज नॉट इवन अवेयर, मैंने रून्स अपने पहले कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में कि होता गया है. जस्ट वन वर्ड, एंड दैट टू रैंडमली ब्राउजिंग पे आई सॉ दिस वर्ड रून्स, हम्म। एंड आई गॉट enrolled myself for a class. So I या। paid a hefty amount of money for learning this modality. So या। my heart was saying that this thing has to come to you, and you have to be a learn make like making people learn for this thing. So यस। whatever your heart says is right, just do with that, go with the flow. या। And trust me, once you will get involved in the spirituality field, you will be seeing the transformation in your life in a very, very positive format. या। आप हर चीज, the way you will think, your mindset will be changing. You'll be seeing the people with a different perception and a different perspective. You'll try to find out the positive in all the negative situations of your life, हम्म। and your life transformation will be marvelous one, a magical one, या। basically. So एब्सोल्युटली। go ahead with this field, and you are all open. It is not like that. अगर आपको लगता है कि आपने इसको एज अ फुल टाइम करियर नहीं लेना, मत लो initially. I will हम्म। not say to leave your good paying job or जॉब्स। something like that. I am या। working as a teacher from morning till afternoon, but in the evening I'm taking out time. So it's हम्म। my decision, my roles, how I'm able to do. या। So I would just suggest or give an advice to everyone who is open to such field. You can definitely give it a try. You हम्म। will be seeing the transformation. You will be seeing that magical change in your life, and that to a positive way. Absolutely well said, ma'am. I felt that ये not only ये जो मोडालिटी है, आप किसी की लाइफ संवार सकते हो, बट आपकी खुद की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होने वाली है, माइंडसेट होने वाली है. ट्रांसफॉर्म होने वाला है. अगर हमारा हो Yes, सकता है तो आपका भी हो सकता है डेफिनेटली. पक्का. So, Hmm. Mehak ma'am, thank you so much for joining, us on this podcast series. बहुत सारी बातें जान के, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करके बहुत मजा आया हमें. एंड डिवाइन सोल के तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता है. एंड गाइस, ये था सैटरडे का पार्ट 2 एपिसोड विद मिस महक गुलाटी फ्रॉम फरीदाबाद. एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए. एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें जरूर पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन. सो वन लास्ट टाइम आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि स्पिरिचुअलिटी में आना आपकी चॉइस है, एंड ग्रोथ जो है वो यूनिवर्स आपको देने वाला है. So, with this note, I am signing off today. And thank you, Mehak ma'am, once again. And guys, please like, share, and subscribe my channel and help us to grow. Thank you so much. Thank you, ma'am. Bye bye. Bye.